Hello students, Om Shanti, welcome to all. Now I am going to discuss the law of chemical combination. तो सबसे पहले मैं इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट अलग से करूंगा. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, व्हाट डज मीन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? ऑल ऑफ यू नो any chemical reaction always occurs in certain ratio. In chemical reaction, the reactant combine together in a certain ratio, that always obey certain law. Hence such reaction is known as law of chemical combination. Followed what I told? In any chemical reaction, reactant always combine in certain ratio and that always obey certain law. Hence, it is known as law of chemical combination. There are several law of chemical combination. Among that, here first I have to discuss law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Second, law of constant proportion or law of definite proportion. Third, law of multiple proportion. Similarly, here law of reciprocal proportion, but that is not included in CBSE. Only these three law included in your syllabus. That's why I am going to discuss these three: law of conservation of mass, law of constant proportion, and law of multiple proportion. So other is the Gay-Lussac law or law of reciprocal proportion. So these law comes under law of chemical combination. As it is written, no, chemical combination means reactant combines in certain ratio and always that obey certain law. Hence it is known as law of chemical combination. So as a whole, all these comes under law of chemical combination. So this law was this first law of conservation of mass, that was stated first Lavoisier. All of you know Lavoisier is also known as father of ancient chemistry, and Lavoisier this law stated in 1789. And the same way law of constant proportion, this law was stated by Proust. So you can write name of scientist who was stated first, Proust. And Proust stated this law in 1799. Okay. And now third law of multiple proportion, that was stated by John Dalton, and that stated in 1804. So now come one by one, law of conservation of mass. So as you know, law of conservation of energy. So that statement, total energy of the system or substance is conserved. The same way here, law of conservation of mass, the total mass of the substance is conserved, no matter that is physically or chemically changes during the process, during the reaction. Suppose that substance react together in certain ratio, but whatever the product obtained, but total mass of substance will not change. Maybe that reactant convert into the other products, and when you calculate the amount of product, that will be equal to the amount of the reactant. Initially how much that reactant takes, that mass always equal to total mass of the products. So law of conservation of mass, again you can write down
It is stated by Lavoisier. It was stated by Lavoisier in 1789. According to this law, any chemical substance either physically or chemically changes, but total mass is conserved. So according to this law, you can write the total mass of reactant equal total mass of product, and numericals related to it. The data will be provided for the reactant and product, and by reading that question, first of all you find the total mass of reactant, again you calculate according to that data total mass of product. If you will get the total mass of reactant equal to total mass of product, then finally you write the given data illustrate the law of conservation of mass, or given data are agreement with the law of conservation of mass. So this is the way to solve the numerical problem. क्या कहा मैंने, इसका न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ के क्या करना है, आपको टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लीजिए, फिर आपको उस डाटा के हिसाब से टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लीजिए। यदि दोनों का वैल्यू सेम होगा तब आप लास्ट में लिखेंगे कि द गिवन डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल बी डिस्कस सेपरेटली, सो जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस थ्री पार्ट ओनली, so just try to understand next second law. Second law, law of constant proportion, law of definite or constant proportion. So just I told you this law was stated by Proust in 1799. So just you take any chemical compound from any sources. जैसे एक एग्जाम्पल में बताता हूं मैं, वाटर यदि हम टेप वाटर लिए या हम किसी कुएं से वेल वाटर लिए या किसी माने पॉन्ड से आप वाटर ले लेते हैं या कोई लेक से वाटर ले लेते हैं, किसी भी सोर्स से आप लीजिए, या टेप वाटर लीजिए या वेल वाटर लीजिए, पॉन्ड वाटर लीजिए या लेक वाटर लीजिए, लेकिन उस वाटर में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो कंपोजिशन है हमेशा वो फिक्स रहेगा। या दूसरे में कहिए कि कोई भी कंपाउंड किसी भी तरीके से बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में कार्बन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट हीट करेंगे तो विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा भी साधन है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो दैट वन डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट कुछ भी अमाउंट लीजिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें जो परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन आएगा और परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन आएगा, वो इस डायरेक्ट मेथड में भी कार्बन का परसेंटेज वैल्यू आपका उतना ही आएगा जो इसमें आया है, चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड्स आर टेकन बाय एनी सोर्सेस और that compound prepared by any method, the composition of constituent element always remains same, that will be not change. So this is the law of constant proportion. So how can you state that one? According to law of constant proportion, when any pure compound taken from any sources or prepared by any method, the composition of constituent element present in that compound always remains same. Okay, so very simple statement, the composition of constituent element present in that compound always remains same, no matter that is taken by any sources or prepared by any method. So this is the law of constant proportion.
तो इसका न्यूमेरिकल में क्या होगा, हमेशा यहाँ दो एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा। एक ही कंपाउंड को यदि एक डिफरेंट मेथड से बनाया गया, उसमें अलग अलग अमाउंट लेके बनाया, उसमें आपको कंपाउंड जो बना उसमें जो परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। फिर दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है उसी कंपाउंड का फिर आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। यदि उसमें परसेंटेज कंपोजिशन दोनों एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में सेम आता है, देन यू हैव टू राइट द गिवन डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और गिवन डाटा आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही आपको न्यूमेरिकल बनाने का मेथड भी है। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस तरह का न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या रहेगा, दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डाटा प्रोवाइड करेगा फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड। अब उस पर्टिकुलर कंपाउंड को फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसी एलिमेंट का आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। यदि सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि डाटा आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो इज इट क्लियर? नाउ थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको समझने के लिए थोड़ा आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान कुछ ऐसे एलिमेंट है जो किसी एलिमेंट का साथ कंबाइन करता है तो दो या दो से अधिक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट ले लीजिए। अलग अलग कंडीशन में ये कभी NO बना देगा, कभी NO2 बना देगा, इसके अमाउंट और कंडीशन के हिसाब से कभी आपको N2O3 बना देगा, कभी N2O5 बना देगा, कभी N2O बनाएगा। देखिए इतने तरह का कंपाउंड बना, एलिमेंट वही है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह से आप कॉपर और क्लोरीन ले लीजिए। कॉपर और क्लोरीन आपको रिएक्ट करेगा तो अलग अलग कंडीशन में कभी क्यूप्रस क्लोराइड बना देगा और कभी क्यूप्रिक क्लोराइड बना देगा, CuCl2। तो इस लॉ में हमको वैसे ही कंपाउंड लेना है जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता हो। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड के लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट दिया जाता है। क्योंकि बहुत सा ऐसा एलिमेंट है उसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक ही तरह से वो कंबाइन करेगा। जैसे ये सोडियम और क्लोरीन ले लेंगे तो हमेशा NaCl ही बनाएगा, वो एक इसी रेशियो में 1:1 रेशियो में, और दूसरा स्टेट में नहीं बनाएगा। तो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिर्फ ऐसे कंपाउंड के लिए बनाते हैं या बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं जो एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे देंगे, जैसे अभी आपको हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि N2O और एक NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है ये। तो इसमें क्या करना है कि आप क्या करेंगे, यहाँ इस कंपाउंड में वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। एक को फिक्स करना होगा, यूनिट मान लेना होगा। तो इसमें जो आपका फिर दूसरे वाला कंपाउंड में वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। फिर क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ आएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन, आप चाहेंगे तो नाइट्रोजन को फिक्स कीजिए और नाइट्रोजन की रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का वेट निकालिए। तो जो भी अमाउंट है, जैसे आपको यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन हुआ और 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन हो गया, तो आपका ये 44 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर 44 ग्राम में से नाइट्रोजन का वेट क्या है, या आप ऐसे लिखिए नाइट्रोजन 28 ग्राम है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, या 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो यूनिट में निकाल लीजिए, 1 ग्राम ऑक्सीजन के हिसाब से ये नाइट्रोजन का वेट क्या हो गया, 28/16। उसी तरह इस कंपाउंड में निकालिए 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, और फिर आप इसी में से 1 ग्राम में निकाल दीजिए यूनिट अमाउंट में 32/14।
अब यहाँ पर निकला है वेट ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, यहाँ भी निकला है वेट ऑफ, अच्छा यहाँ हम थोड़ा अलग कर दिए ना, ऑक्सीजन पहले आप एक को फिक्स करना होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 14/32 ग्राम। ओके, तो आपको कहने का मतलब कि यहाँ जो वेट निकाले हैं हम नाइट्रोजन का विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यहाँ भी निकाले हैं नाइट्रोजन का वेट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, दोनों का रेशियो निकालिए। जैसे वो 28/16 है और बाय है ये 14/32, तो 28/16 और 32/14 हो गया, तो 16 2 जा और 14 2 जा, तो ये 4:1 हो गया, 4/2 सॉरी 4/1। तो कहने का मतलब यही स्टेटमेंट हम डेफिनेशन में बनाएंगे। अभी हम क्या किए कि वैसे दो एलिमेंट जो अलग अलग कंपाउंड बनाता है उसमें एक एलिमेंट का कम वेट विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑलवेज बेयर सिंपल रेशियो। जैसे इस कंपाउंड में नाइट्रस ऑक्साइड में हम लोग नाइट्रोजन का वेट निकालें विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, फिर इस कंपाउंड में हम लोग नाइट्रोजन का वेट निकालें विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और दोनों का रेशियो निकालें, तो ये हमेशा होल इंटीजर में रेशियो आएगा। यही तो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अभी हम लोग ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये समझ गया होगा तो आराम से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ multiple proportion you can write when two elements combine together gives two or more than two different compound. The weight of one element with respect to other, weight of one element combines with fixed mass of other। जैसे हम यूनिट अमाउंट में निकाले थे वो फिक्स हो गया था, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि वन एलिमेंट कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ अदर, दूसरे एलिमेंट फिक्स मास अदर यानी दूसरे की रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट का वेट ऑलवेज बेयर्स सिंपल रेशियो। क्लियर? So when two elements combine together gives two or more than two different compound, the weight of one element combines with fixed mass of other always bear simple ratio। तो न्यूमेरिकल भी जो पहले वाला तरीका है उसी तरह बनाते हैं। तो यहाँ भी दो एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, दो कॉमन एलिमेंट होगा और उसी से दो अलग अलग कंपाउंड का डाटा प्रोवाइड किया होगा। तो दोनों कंपाउंड में से आप एक एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा एलिमेंट का वेट निकाल लेंगे, इसी तरह दूसरा में इसी तरह करेंगे और फिर जो रिलेटिव मास जो निकला है उसको आप डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो वो आपको हमेशा होल इंटीजर रेशियो में आएगा। तब हम लोग बोलेंगे गिवन डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये थ्योरी पार्ट समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।